5, and we can wait for some other people to join. Yes, we should start now. Otherwise, it would get late, as the webinar was planned at 9 p.m. and it's almost 9:10 now. The good thing is that those people who couldn't attend this webinar can have the recording for this webinar, and inshallah, that will be helpful to those who haven't taken the live webinar. So, Assalamu alaikum. I'm Dr. Shafat Tabassum, and I am a consultant pediatrician currently working in Children's Hospital, Lahore. I passed my exam back in 2021, and I passed my exam in second attempt. Why am I mentioning this? Because this is not important that in which attempt you ultimately pass the exam. We should be knowing that what is the actual purpose of this clinical exam. The actual purpose of this clinical exam is to assess that are we able to be labeled as a consultant pediatrician or not. Are we prepared for it or not? So that is very important that during our training, we develop such clinical skills that ultimately at the end of our training, we develop the attitude and behavior and knowledge of a consultant pediatrician. So doesn't matter if the examiners think you are not suitable for being declared as pass in first attempt, doesn't matter. If you don't pass in the second attempt, doesn't matter even if you pass in third attempt. But yes, if you give your best and try to pass the exam within the first 3 attempts, that is very nice. Because after the 3 attempts again we have to go through that period in which we have to give the written exam, and that takes a lot of time from our normal routine. But if we want to pass the exam within 3 attempts, or even some people, they're very passionate and they feel that they should pass the exam in first attempt. But I would say that, okay, fine, you can set this as a target that you want to pass the exam in first attempt. But I would say that don't be upset if you don't pass, because there are number of factors. No doubt the major factor for the failure is that our preparation is not up to the mark, but there could be other reasons. Sometimes we tend to blame the examiner. Yes, that may be the reason, that maybe your examiner wasn't in a very good mood, so he failed you. But doesn't matter, ultimately what happens for the best. So just give me a moment. So first important thing which I would suggest to all of you is that if you have to go through the clinical exam first before the clinical, means this is your first attempt ever for any for this FTPS exam, then suggest that you should be doing a very, very good preparation for your written exam. The preparation which you do initially, first time ever, is the preparation not only for written exam, it is the preparation for talks, it is the preparation for clinical exam. Because what is clinical? Clinical exam that includes those cases which are obviously the part of your normal pediatric curriculum. So in your books, you will find all the topics which will be you know presented to you during the exam as a case. For example, nephrotic syndrome, diabetes mellitus. So these are the long cases, fine. Nephrotic or, for example, CKD. These are short cases, fine. But when you are preparing initially, obviously you will find these topics in the Nelson textbook of pediatrics, and you need to study them from the point of view of written exam as well as for the clinic. This is very important. I want to know that is there anyone in this webinar today who cannot understand Urdu? Because sometimes, when I feel like stressing on something,
I like to speak Urdu for that. So please do mention in the chat box that any one of you who doesn't understand Urdu. So uh, अब मैं आपको सम अप करके बता रही हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आपने पहली ही दफा तैयारी इतनी परफेक्ट करनी है कि आपको ये टेंशन ना हो कि मैंने जब फर्स्ट टाइम सारी नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स को रीड किया तो मैंने उसको सिर्फ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। नो, आपने ऐसी तैयारी करनी है कि जब आप लॉन्ग केस के लिए कोई भी बुक खोलेंगे या आप नेल्सन को ही खोलेंगे, जब आप उसकी तैयारी करने के लिए बैठेंगे, आपने वो सारे टॉपिक्स इस तरह से पढ़े हों कि आपको सब कुछ आता हो। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ presentation with you all. This is a very brief presentation. It is not a long one because I feel like talking more and showing less. And I would like all of you to please get involved in this discussion because this discussion is for you people and this discussion is for your guidance. So, any of you who wants to ask any question at any point, you can raise your hand and you can ask the questions. So, we're not talking about TOEFs because TOEFs is something different. Although TOEFs is part of clinical exam, but currently we are talking about the long case and the short case. So, welcome to this lecture or webinar, which is an orientation of FCPS Part 2 Pediatric Examination, uh, Peds Medicine Examination, clinical part. So, we'll be discussing about the short cases, the common commands for the short cases, long cases, how a long case is, and the commonly asked questions both in long and short case. So we have some messages in the chat box. Okay, that's a very good question. Someone is asking that after 2 consecutive failure in clinical exam, should we skip clinical exam of February or should we go for February exam? It will be my last attempt and I'm confused whether to appear in February exam and August exam. So I would say that sometimes, we are exhausted after giving 2 attempts. एक तो ये कि सबसे पहले we need to think कि ऐसे क्या फैक्टर्स थे जो हमारे फेलियर की रीजंस बने। ठीक है, हम एंड पे एक फेलियर की रीजंस भी डिस्कस करेंगे जो हमने क्लिनिकल एग्जाम से पहले भी, सॉरी, जो हमारा रिटन कोर्स था उसको स्टार्ट करने से पहले भी हमने एक वेबिनार किया था और इसमें हमने फेलियर की रीजंस डिस्कस की थी। तो फेलियर की रीजंस बहुत सारी होती हैं। ठीक है, उनमें मोस्ट कॉमन यही होती है कि आपने प्रेपरेशन अप टू द मार्क नहीं की होती। अब उसकी फर्दर बहुत ज्यादा रीजंस हो सकती हैं कि आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया या आपको एक्चुअल गाइडेंस नहीं मिली थी कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, या एट द मोमेंट यू वर नॉट फीलिंग वेल और आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका, then obviously we say that bad luck happened that day. So there are a number of factors. So first of all आपने रीजन देखनी है। एंड आई वुड से कि समटाइम्स हमें लग रहा होता है दैट वी प्रिपेयर्ड अ लॉट एंड हमारी तो बहुत परफेक्ट तैयारी थी तो एग्जामिनर ने ही ऐसे क्वेश्चंस किए या केस ऐसा आ गया। सो आपने प्लीज ज्यादातर यही माइंड में रखें कि मेरी तरफ से ही कोई इशू हुआ होगा। ठीक है, सो हर अटेम्प्ट की तैयारी के लिए आपने अपनी पिछली तैयारी में जो शॉर्ट कमिंग्स थी, जो चीजें आपने नहीं की थी, वो करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर ऑफ शॉर्ट केसेस एंड लॉन्ग केसेस। आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कम टाइम होता है बिकॉज हम एक्चुअली वी डोंट नो कि हम रिटर्न पास करेंगे, टोक्स पास करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब हम माशाल्लाह से सब कुछ पास करते जाते हैं और लॉन्ग केस शॉर्ट केस की बारी आती है तो वी डोंट हैव दैट मच टाइम ना। हमारे पास 20 डेज होते हैं, बहुत ही हमारी लक हो तो 1 मंथ मिल जाएगा। ठीक है, इवन इससे भी कम टाइम होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप रिटर्न की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है, आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ रहे होते हो ये सोच के कि ऐसा है, आई शुड कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, अगर ये एमसीक्यू में नहीं भी आएंगे तो मुझे ये चीज टोस्ट या लॉन्ग केस शॉर्ट केस में हेल्प आउट करेगी। लेकिन आप फिर भी उस वो जो टिपिकल फॉर्मेट होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट केस का, आप उस तरह से तैयारी नहीं कर रहे होते हो। ठीक है,
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक दैट इज अलाउड कि आप बिल्कुल जो टिपिकल वाले लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस हैं आप उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें कि कम से कम इनमें से कोई केस आता है तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं। लेकिन आप थोड़े से जो लेस इंपॉर्टेंट केसेस हैं या जो कॉमनली नहीं आते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली अब आपने रिटर्न की तैयारी नहीं करनी, और मोस्टली लोगों का टोक्स भी पास होता है तो टोक्स की भी तैयारी नहीं करनी। अब आपने कोई भी लॉन्ग और शॉर्ट केस को नहीं छोड़ना। जो आप पहले नहीं कर सके थे आपने वो भी करने हैं। और ट्राई कि आप हर लॉन्ग और शॉर्ट केस की मैक्सिमम बातों को, बल्कि 100% चीजों को कवर करें, ठीक है। मतलब ऐसी कोई वीकनेस ना रह जाए कि मैंने मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर ली लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल पैथोफिजियोलॉजी इस केस की मुझे नहीं पता थी, ठीक है, कुछ बातें मैंने इसकी मिस कर दी, लेटेस्ट एडवांसमेंट्स नहीं देखी, प्रोग्नोसिस का पोर्शन नहीं देखा, ये चीजें मैंने मिस कर दी। नहीं, जब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाएं तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम लॉन्ग एंड शॉर्ट केसेस प्रिपेयर करके जाएं, और हर लॉन्ग केस और शॉर्ट केस को 100% तैयारी के साथ जाएं। अब तैयारी में भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है और आपकी प्रैक्टिस भी आती है, तो दोनों आपको साथ साथ लेके चलना है। कुछ लोग सिर्फ प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और थ्योरेटिकली जरा वीक होते हैं, और कुछ लोग जो है वो थ्योरेटिकली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बट वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो दोनों चीजों को हमने साथ साथ लेके चलना है। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि वट एवर द रीजन इज कि आपके 2 दफा अटेम्प्ट पास नहीं हो सके, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप अपनी थर्ड अटेम्प्ट को स्किप करें। मैं ज्यादातर लोगों को ये मशवरा देती हूँ कि आप अपनी थर्ड अटेम्प्ट को स्किप कर दें तो अच्छा है, बिकॉज थोड़ा सा आपको आपने जो एक ऑलमोस्ट आई थिंक एक साल ही गुजर चुका होता है 2 अटेम्प्ट देने में, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है मेंटली भी फिजिकली भी, हर तरह से, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्किप कर दें, लेकिन आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। यस, अगर आपने बी ए वाली अटेम्प्ट देनी होती तो आपको हर रोज बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती, लेकिन अब अगर आप ये वाली स्किप करें और उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, लेस नंबर ऑफ आवर्स में स्टडी कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, ठीक है, लेकिन कवर आपने सब कुछ करना है और रिवीजन का टाइम भी रखना है। सो coming back to the presentation, we have total 4 cases, short cases, and we know that we have 5 minutes for examination of every case and 5 minutes for the viva। और short cases आपके बैक टू बैक 4 हो जाते हैं, बीच में आपको किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं मिलता, ठीक है। और यूजली, बल्कि यूजली नहीं, ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हम शॉर्ट केसेस करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है कुछ लोगों का जिनका पहली दफा में उनका ग्रुप बन जाता है, और जिन लोगों का दूसरी दफा का ग्रुप बनता है शॉर्ट केस का, बिकॉज इट हैपेंस के 2 या 3 जगह शॉर्ट केसेस अरेंज्ड होते हैं फॉर फोर पेशेंट्स, एंड सम ऑफ द पीपल दे गो एंड परफॉर्म द शॉर्ट केसेस फर्स्ट and the rest of the people are waiting. Then the people who have done the short cases, they wait, and rest of the people perform the short cases. So जो लोग पहले शॉर्ट केसेस कर लेते हैं उनको थोड़ी सी ब्रेक मिल जाती है बिफोर द लॉन्ग केस, लेकिन जो लोग एंड पे करते हैं शॉर्ट केस, ऑब्वियसली उन्होंने फिर फॉरन से लॉन्ग केस करना होता है। तो एक तो ये कि शॉर्ट केसेस परफॉर्म करने से पहले अपनी एंजाइटी को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखें, ठीक है। आई नो इवन द रीजन फॉर द फेलियर, फॉर माई फेलियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज दिस दैट I couldn't control my anxiety. So if you think your anxiety is causing a lot of trouble to you, इसकी वजह से आप पहले फेल हो चुके हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है एंड यू कांट कंट्रोल दैट एंजाइटी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर साइकोलॉजिकल, या इवन अगर वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है तो आप साइकेट्रिक हेल्प जरूर लें, ठीक है। सो यू नीड टू कंट्रोल योर एंजाइटी बाय एनी मीन्स, ठीक है। दैट कुड बी साइकोथेरेपी, दैट कुड बी सेल्फ डिटर्मिनेशन, योगा, एंड गुड डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग कि आपको दवाइयां खाना शुरू करने फॉर एंजाइटी, लेकिन यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर एंजाइटी, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, आपका एग्जाम बैग बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए,
कोई चीज उसमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको जैसे वो डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ चलें, ये केस परफॉर्म करें, और आपने बेल बजने का इंतजार करना है। आपने बार बार घड़ी को, ठीक है फाइन, आप घड़ी को देख सकते हैं, लेकिन स्टिल आप बेल पे जरा ध्यान रखें कि बेल बजेगी तो आई हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम, ठीक है। और फिर 5 मिनट में आपका वाइवा होगा। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और आप सिर्फ परफॉर्म ही करते रह जाएंगे, तो एग्जामिनर आपसे वाइवा नहीं ले सकेगा और आप अल्टीमेटली वो शॉर्ट केस पास नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपके 3 शॉर्ट केसेस पास हो जाते हैं, तो इवन इफ यू यू हैव सम लो मार्क्स एंड लॉन्ग केस, तो 3 शॉर्ट केसेस पास होने की बेसिस पे आपका लॉन्ग केस लाइक ओवरऑल आप पास कंसिडर हो जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 शॉर्ट केसेस बहुत मेस्ड अप कर दिए हैं, तब भी आपका थोड़ा बहुत चांस होता है कि लॉन्ग केस में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो आप ओवरऑल पास हो जाओ। लेकिन आपने जो है ना, वो बेसिकली 3 आपके शॉर्ट केसेस अगर बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो दैट एक्चुअली मीन्स कि मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह लॉन्ग केस अगर आपका अच्छा हो जाता है या एवरेज भी हो जाता है, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। सो अब शॉर्ट केसेस में आपको कमांड्स क्या मिल सकता है? लेट्स फर्स्ट सी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। आई वुड लाइक you people to kindly talk. Like, ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, but I would feel more good if you talk to me. Yes, okay. That's true, Dr. Shraddha. Actually, this happens. लॉन्ग केस बहुत लोगों का पास हो जाता है, बिकॉज लॉन्ग केस में आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आप समहाउ मैनेज कर लेते हो, अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट भी कर लेते हो। लेकिन शॉर्ट केसेस आई थिंक is something difficult. लेकिन ऑन दी अदर हैंड देयर आर पीपल जो शॉर्ट केसेस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कि वो जब शॉर्ट केसेस परफॉर्म करता है तो वो जबरदस्त करता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग केस में उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब इतना टाइम है, हाउ टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, हाउ टू टेल द एग्जामिनर कि हमने हिस्ट्री में क्या लिया। एग्जामिनेशन में स्मार्ट वर्ड्स का यूज करना जो है ना, वो नहीं आ रहा होता। तो हर एक की अपनी शॉर्टकमिंग्स है। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि हम शॉर्ट केसेस की बहुत अच्छी तैयारी कर लें, लॉन्ग केस को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लें, या लॉन्ग केस की बहुत अच्छी तैयारी कर लें, शॉर्ट केसेस को इग्नोर कर लें। नो, हमने दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना है। अब शॉर्ट केस में यू कैन सी दैट वी कैन हैव अ लॉट ऑफ कमांड्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने कमांड को बहुत गौर से सुनना है और हमने कमांड को ही फॉलो करना है। मोस्टली आपको इन सारे कमांड्स के साथ एंड रेलिवेंट, लाइक you could be asked to do abdominal examination and relevant. जब आपको रेलेवेंट कह दिया जाता है, तो दैट डजंट मीन कि आपने पूरा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन उसके बाद करना है। नो, ठीक है। आपने एक्चुअली सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड hepatosplenomegaly in abdominal examination, so you know that you need to see the BCG scar, you need to see the lymphadenopathy, ठीक है। अगर आपको ascites मिलता है, तो आपको पता है you have to go and check for pleural effusion, for pedal edema। तो आपने सबसे पहले अपने कमांड को फॉलो करना, और उसके बाद अपने रेलेवेंट में देखना है। और अगर आपको रेलेवेंट का नहीं कहा गया, तब भी ऑब्वियसली रेलेवेंट करना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आपका फर्स्ट एम होना चाहिए कि आप अपना जो कमांड है उसको फॉलो करें। सो सिंस दिस इज एन ओरिएंटेशन लेक्चर, तो हम हर कमांड में क्या क्या स्टेप्स करने हैं, वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट। This is just to, give you a clue that inshallah, we'll be covering both long cases and short cases in the course that me and Dr. Nadeem have designed with the platform of MedPrep Online. And inshallah, we'll be guiding you about each short case, और हर शॉर्ट केस, हर कमांड की हम बात करेंगे इन आवर कोर्स, और आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, बिकॉज गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर हमें पता ही ना हो कि ये कमांड्स कॉमनली आते हैं, तो शायद हम उस तरह से प्रैक्टिस में तैयारी भी ना कर सकें। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग केस। लॉन्ग केस आपका एक ही होता है, 40 मिनट्स आपको मिलते हैं फॉर टेकिंग हिस्ट्री एंड डूइंग द एग्जामिनेशन। एग्जाम बैग आपके पास अपना होना चाहिए, शीट आपको मिलती है बट स्टेशनरी यू शुड हैव योर ओन। बहुत अगर आपको अर्जेंसी है तो आपको पेन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब लॉन्ग केस में आपने शीट के ऊपर
जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन के पॉइंट्स लिखने हैं वो सिर्फ अपनी हेल्प के लिए लिखना है, यू डोंट हैव टू सबमिट दैट शीट, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छा नीट लिखा हुआ फुल सेंटेंसेस लिखे हुए, दैट इज ऑब्वियसली नॉट इम्पोर्टेंट। और आई थिंक most of you must have taken the webinar which Dr. Madiha Sarwat did, and she explained very brilliantly how to take history and examination। का ये है कि एग्जामिनेशन कि हम अलग से क्लास नहीं कोई रखेंगे, बिकॉज एग्जामिनेशन जब हम कहते हैं कि टिपिकल लाइक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवियस एग्जामिनेशन, तो वो एक बिल्कुल बेसिक होता है, और ऑब्वियसली हमें वो भी आना चाहिए ना। वो नहीं आएगा तो हम अपने शॉर्ट केसेस को नहीं परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन हमें हर एग्जामिनेशन का स्टेप सही तरह करना आना चाहिए, और उसके बाद हमें FCPS पार्ट 2 के एग्जाम के लिए शॉर्ट केस में उन सारे एग्जामिनेशन को यूटिलाइज करके एक स्कीम बना के उस स्कीम के अकॉर्डिंगली चलना होता है, ठीक है। सो लॉन्ग केस में ideally you do the whole examination of the patient. You start from the general physical examination, and obviously आपको हिस्ट्री से जो क्लू मिला है कि जिस सिस्टम की मेनली इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले आप उसके एग्जामिनेशन से स्टार्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू फाइंड जॉन्डिस इन द पेशेंट, और हिस्ट्री आपको प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस की या CAD की फीचर्स की मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू स्टार्ट फ्रॉम द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, राइट। तो पहले आप वो करें, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज कि समटाइम्स हम मिस्टेक्स करते हैं कि शॉर्ट केस में हमें जिस स्कीम के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए था हम नहीं वो फॉलो कर पाते, हम कर रहे होते हैं, एंड एट द एंड वी रियलाइज दैट ओ वी मिस दैट एंड वी नीड टू डू दैट। सो यू गो बैक, फॉर एग्जांपल आप हेड टू टो चल रहे हैं और आप नीचे लेग्स तक आ गए हैं, बट यू फील दैट आई हैड टू सी दिस इन एब्डोमेन, you go back and do at the end. No doubt that is allowed and you should be doing it. जब आपको याद आए कि we missed this point and we need to do that, so you can go back and do. बट मोस्टली हमारा जो एग्जामिनर होता है वो खड़े होके आपकी स्कीम को स्पेशली शॉर्ट केस में देख रहा होता है, ठीक है। सो दैट वुड गिव अ बैड इंप्रेशन कि आप एक चीज भूल गए थे और आपने दोबारा की, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया है तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता, यू नो। वन मिस्टेक आई यूज्ड टू मेक एज अ रेजिडेंट व्हेन आई यूज्ड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ सीनियर्स वाज that for example, because obviously I was a resident, I wasn't perfect like most of the residents, so I was supposed to make mistakes, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती थी। तो आई यूज्ड टू से, एंड इवन द लॉन्ग केस, दैट at the end I used to say I should have done that, I sorry I missed that, you know, it skipped from my mind, and sorry I had to do this, I couldn't do it, can I do it now? So you don't have to say all these things, you have to behave in a very mature fashion, very politely and very nicely in a mature manner. You have to say that I would like to do this, this, and this. So fine, if the examiner says that you had the time, you missed the opportunity, you should have done that. Fine, if anyone comments like that, but you don't have to give explanations for that. That why couldn't I do that? Oh, sorry. You know, you don't have to speak much, even in the long case. So, शॉर्ट केस में कहते हैं कि अगर आपने कुछ चीजें स्किप करनी है तो एंड पे दो चीजें आपको बताना अलाउड होता है। एग्जामिनर भी अक्सर आपसे पूछ लेता है कि एनी थिंग यू वुड लाइक टू डू, तो आप दो चीजें कह सकते हैं कि आई वांट टू डू दिस एंड दिस, राइट। लॉन्ग केस में डू समथिंग, अगर कोई चीज आप मिस कर देते हैं तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन, बिकॉज आपके पास टाइम भी बहुत होता है। लेकिन फाइन, एग्जामिनर मोस्टली एग्जामिनर खड़े होके लॉन्ग केस भी आपको परफॉर्म करते हुए देख रहे हो, स्पेशली जब आप एग्जामिनेशन करते हैं, इवन हिस्ट्री टेकिंग भी आपकी सुन रहे होता है। सो दैट वुड गिव अ गुड इंप्रेशन कि फॉर एग्जांपल जॉन्डिस के साथ पेशेंट है तो आप पहले एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें, लेकिन यू आर सपोज टू डू द नर्वस सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड द चेस्ट, द प्रीकॉर्डियम, लाइक एवरीथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। अच्छा, हमारे पीडियाट्रिक मेडिसिन के केसेस में इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल नहीं होती, यू नो। आई नो दैट इन सम स्पेशलिटीज द फाइल ऑफ द पेशेंट इज प्रेजेंट, द
labs are available to the candidate, but हमारे long cases में we don't have the file and investigation folder. अच्छा, 40 मिनट्स में से 30 मिनट्स में एक्चुअली आपने सब कुछ ले लेना होता है, लाइक होल हिस्ट्री एग्जामिनेशन। हिस्ट्री लेने की बार बार प्रैक्टिस करें, एग्जामिनेशन के साथ करें, ताकि आप 30 मिनट्स में कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपको करना आना चाहिए, दैट नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, और आपको बड़ा स्मार्टली पॉजिटिव चीजों को और इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स को नोट डाउन करना आना चाहिए। समटाइम्स हम टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वी जस्ट कीप ऑन राइटिंग लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस एंड होल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, जिसका कोई फायदा नहीं होता। तो स्मार्टली उसको लिखना सीखें। और समटाइम्स कई कैंडिडेट इतनी बुरी राइटिंग में लिख देते हैं, फिर उनको याद नहीं होता, और वो जब खुद ही पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने लिखा क्या था। तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कुछ लिख ही नहीं रहे होते, दे लाइक आई एम टेकिंग द हिस्ट्री, आई एम डूइंग द एग्जामिनेशन, आई रिमेम्बर एवरीथिंग एंड आई कैन टेल। लेकिन एक्चुअली आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने होते हैं अपनी हेल्प के लिए, और ये एग्जामिनर को भी एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है दैट यू आर नोटिंग डाउन थिंग्स। नोटिंग डाउन थिंग्स इज गुड। अच्छा, 10 मिनट्स आपने रखने हैं सम अप करने के लिए। ठीक है, सम अप इस तरह से, और जैसे डॉक्टर मदीहा ने आई थिंक इन द वेबिनार शी टोल्ड यू अ वेरी गुड ट्रिक, कि आप हिस्ट्री टेकिंग के सारे, जब आपको केस असाइन हुआ है तो 1-2 मिनट में आप हिस्ट्री टेकिंग के सारे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होती हैं वो शीट के ऊपर लिख लें, ताकि आप कुछ भी पूछना मिस ना करें। ठीक है, तो 10 मिनट्स में आपने एक दफा सम अप कर लेना होता है व्हाट यू हैव टू टेल टू द एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कहेगा नाउ एक्सप्लेन व्हाट यू हैव डन। So you have to very smartly tell the history and the examination points, और समटाइम्स पूरी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आपसे सुन लेते हैं, फिर कहते हैं समराइज द केस, तो आपको हर केस समराइज करना भी आना चाहिए। इंशाल्लाह हम कोर्स में आपको उसके बारे में भी गाइड करेंगे दैट हाउ टू समराइज द केस। और समटाइम्स सम एग्जामिनर्स जस्ट आस्क यू टू समराइज डायरेक्ट, वो पूरी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन नहीं सुनते। 30 मिनट्स में होता है जी आपका वाइवा। वाइवा में हम एक शॉर्ट केस में पॉजिटिव फाइंडिंग्स का पूछते हैं। ठीक है, और व्हेन दे आस्क यू दैट व्हाट इज द प्रोविजनल डायग्नोसिस या व्हाट कुड बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो आपको डिफेंड करना आना चाहिए। ठीक है, अब जब आप डिफेंड करते हैं डायग्नोसिस को कि मैंने ये सोचा, तो आपको इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स भी आपने देखे होते हैं और वो भी आपके माइंड में होने चाहिए। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दैट अ पेशेंट हैज एंटेरिक फीवर, he has hepatosplenomegaly. So obviously, examiner could ask that why didn't you consider malaria in this patient? So you have to tell the important negatives कि मलेरिया की ये चीजें थी मैंने देखी और वो मुझे नहीं मिली। तो आपको शॉर्ट केस में भी ये बताना आना चाहिए, लॉन्ग केस में भी। समरी ऑफ द केस जो है वो आपसे लॉन्ग केस में ही पूछी जाती है, लेकिन ये मैंने क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिए। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आफ्टर द लॉन्ग केस, दैट आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन ले ली, आपने डायग्नोसिस बना लिया। दो तरह के लॉन्ग केसेस होंगे, एक होंगे जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करेंगे, तो यू विल बी एक्चुअली मेकिंग अ प्रोविजनल डायग्नोसिस, इसको ये है सीएलडी है, सीकेडी है, सीलिक डिजीज है, राइट। लेकिन देयर वुड बी मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो नोन केस होंगे किसी क्रॉनिक इलनेस की, और वो किसी कॉम्प्लिकेशन या एक्टिव इशू के साथ आए होंगे। ठीक है, एंड बहुत सारे पेशेंट्स के एक एक्टिव इशू के बजाय बहुत सारे एक्टिव इश्यूज होते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, सीएलडी की ही बात कर लेता है, नाउ द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद अपर जीआई ब्लीड, राइट। तो अपर जीआई ब्लीड पे पेशेंट के अटेंडेंट को और पेशेंट का ज्यादा फोकस है कि अपर जीआई ब्लीड एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन जब आप बच्चे की एट द एंड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, और एग्जामिनर एक्चुअली आपसे पूछता है कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, ठीक है, बिकॉज फिर आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है। तो अब आपने एज अ पीडियाट्रिशियन जो चीजें पेशेंट या अटेंडेंट नहीं जिन चीजों पे गौर करा, यू हैव टू कंसिडर दोज एक्टिव प्रॉब्लम्स टू। ठीक है, for example, you could note that the patient is not gaining height, the patient is not having appropriate weight, the patient doesn't have a good diet, the patient has not started school, he should have been in being indulged in educational activities. या आप साथ में आइडेंटिफाई करते हैं कि the family is overall very depressed, or you identify that the family is having a lot of financial problems. ठीक है, तो the patient is having constipation, तो ये सारी
प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट की, तो आपने सिर्फ पेशेंट और उसकी अटेंडेंट की हिस्ट्री की बेसिस पे प्रॉब्लम्स नहीं आइडेंटिफाई करने, आपने एज अ होल अपने केस के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन ऑब्वियसली इफ यू विल बी आस्क्ड हाउ टू मैनेज, द मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। और अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस को पूछे, you have to name the investigations, but you also have to tell कि आप उस investigation पे अ, देखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आपको हर चीज को कैटेगराइज करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेशंस में वेरी स्मार्टली you could say that these investigations I'm doing for confirming the diagnosis, but now these investigations I'm doing to rule out the complications of this disease. And these investigations I'm doing to look for associations of this disease. ठीक है। सो these investigations I'm doing to see the prognosis of treatment. तो आपको कैटेगराइज करना बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट में भी कैटेगराइज करना सीखे। मैनेजमेंट में काउंसलिंग आती है, ठीक है, उसमें साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट आती है, उसमें साइको सोशल डायनामिक्स फैमिली के उनको मैनेज करना भी आता है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आती है, उसमें न्यूट्रिशन आती है, उसमें स्कूलिंग आती है, उसमें बहुत कुछ आता है। तो सिर्फ डिजीज की जो ट्रीटमेंट है अ, वो नहीं आपने बतानी है, आपने ओवरऑल मैनेजमेंट बतानी है। देन यू नीड टू टेल कि फॉलो अप कब होना चाहिए है, फॉलो अप पे आप क्या क्या देखेंगे। ये एंड तक, अगर आप से वाइवा एंड तक लिया जाता है, तो दैट इज अ गुड साइन कि मोस्ट लाइकली यू गोना पास, बिकॉज आपका वाइवा आगे चला, क्योंकि आप अप्रोप्रिएट आंसर्स देते गए, इसीलिए एग्जामिनर ये सारे एरियाज को कवर करता गया, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप अभी, आपका वाइवा टाइम खत्म हो गया और आपसे वो सिर्फ डायग्नोसिस को ही डिफाइन करने को कही जा रहा है, डीडीज आपसे रूल आउट करवाई जा रहा है, तो दैट कुड बी अ क्लू कि आप एंड तक नहीं गए, तो यू नो मे बी यू विल नॉट पास, बट दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एंड तक वाइवा के नहीं पहुंचे, ये सारे एरियाज कवर नहीं हुए तो आप पास नहीं होंगे, ठीक है। द एग्जामिनर जस्ट वांटेड टू डिस्कस द डीडी, ठीक है, वो हर एक से मैनेजमेंट नहीं पूछना चाह रहा था। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो प्लीज स्टे पॉजिटिव, ठीक है। अ, लेकिन इतना ओवर पॉजिटिव भी ना हो कि एंड पे फिर आप कह रहे हो कि पता नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं कैसे फेल हो गया। लेकिन दैट डू हैपेंस। इसका एक बहुत अच्छा हल ये होता है कि फीडबैक लें, ठीक है। आपसे जो मिस्टेक्स हुई, you can just discuss those mistakes with some senior or some colleague afterwards. अगर आपसे नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कि मेरे फेलियर का रीजन क्या था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रोग्नोसिस का भी आपने बताना है। समटाइम्स द एग्जामिनर दे कैन आस्क यू द पैथोफिजियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। प्रिवेंशन मैंने इसमें नहीं बताया, प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स भी पूछी जा सकती है, तो हर केस की लेटेस्ट एडवांसमेंट्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एंड पे मैंने आपसे कहा था कि हम इंशाल्लाह रीजन ऑफ फेलियर डिस्कस करेंगे। आई थिंक रीजन ऑफ फेलियर यही है कि अप्रोप्रिएट तैयारी नहीं होती है, हमने पहले भी बात की, अप्रोप्रिएट तैयारी क्यों नहीं होती, उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। तो एट द एंड आई वुड से कि प्रॉपर गाइडेंस लें, हमारा कोर्स ज्वाइन करें, कोई और कोर्स ज्वाइन करें, या if you have some senior or colleague who has good experience and who is ready to guide you, आप उससे गाइडेंस लें, अपने सुपरवाइजर से गाइडेंस लें, whatever we I'm not suggesting any one thing, ठीक है। but I would say कि instead of preparing alone, go for any kind of supervision, ठीक है। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज एक समटाइम्स आपको बहुत सारी चीजें लग रहा होता है आई एम डूइंग गुड, दैट इज ऑल विच इज नेसेसरी, बट आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे होते हैं। तो प्लीज डू टेक गाइडेंस, डू हैव सम काइंड ऑफ सुपरविजन, ठीक है। टाइम दें अप्रोप्रिएट, लेकिन एग्जाम को इतना भी दिमाग पे हावी ना करें कि आप फैमिली के साथ ताल्लुकात खराब कर लें, वर्क प्लेस पे इश्यूज हो जाए, आपके मेंटल हेल्थ बहुत अपसेट हो जाए। तो ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है। और उसके लिए व्हेनेवर यू फील, टेक हेल्प फ्रॉम पीपल अराउंड यू। अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि हाउ शुड आई मैनेज माय टाइम, हाउ शुड आई मैनेज माय फैमिली एंड वर्क अलोंग विद एग्जाम प्रिपरेशन, सो डू टॉक टू पीपल, डू टेक एडवाइस,
ठीक है, अब तैयारी कहाँ से करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड से कि एक दफा तो टॉपिक को नेल्सन से जरूर पढ़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग केसेस की तैयारी करने के लिए बैठे हैं या शॉर्ट केसेस की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, तो नेल्सन को ही अपनी एक बेसिक रेफरेंस रखें। उस टॉपिक को सबसे पहले नेल्सन से बहुत अच्छी तरह रीड करें। ठीक है, और इवन जो केस है उसमें जो आप डीडीज भी सोचेंगे ना, जो डीडीज पॉसिबल हो सकता है, उनको भी नेल्सन से पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद आप कोई अच्छी रेफरेंस बुक, कोई नोट्स या तो खुद से बना लें, या जो बने बनाए हैं बहुत सारे अच्छे ऑथर्स के, आप वो यूज कर सकते हैं। तो बस अच्छा रेफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें या नोट्स खरीद के बैठ जाए। यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट योर कोलीग्स जिनके पास डिफरेंट तरह के नोट्स एंड बुक्स हैं, दैट यू वांट टू हैव अ लुक, और फिर जहां से आपको अच्छा लगे आप करें। फिर ये कि बहुत सारी जो नोट्स एंड बुक्स अवेलेबल है, किसी ना कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग केस या शॉर्ट केस मिसिंग होता है, तो यू जस्ट नीड टू गैदर कि अच्छा इस बुक से हमने ये लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस किए, लेकिन एक और बुक है विच इज वेरी गुड, पीपल हैव गिवन गुड फीडबैक अबाउट दैट बुक, और उसमें एक दो ऐसे केसेस भी लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन जो हम बुक पढ़े तो उसमें नहीं है। तो ऑब्वियसली जिस बुक से आपको जो केस मिले वो हमने करना होता है। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू to join our clinical course, and inshallah we'll be starting the course from tomorrow. We are going to have a first class tomorrow. So because um, a lot of you would be confused that whether we should join the course or not, so we're giving you this opportunity that you could take our first two classes. Any one of you can join those classes. We'll share the link, so you can have an idea कि हम इंशाल्लाह अपने कोर्स में किस तरह से करेंगे मैनेज सब कुछ। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, और इंशाल्लाह आप को अच्छा लगेगा, and you'll be motivated to join our course. So thank you so much, take care, and inshallah see you tomorrow in our first class. Allah Hafiz. Well, मैंने अल्लाह हाफिज जल्दी कह दिया है, बट आई थिंक मैं बीच में एक्चुअली पूछ रही थी आप लोगों से कि anyone who wants to ask any question. So जिन लोगों ने क्वेश्चंस करने थे उन्होंने क्वेश्चंस एक्चुअली किए. Again, I'm having some of the questions in the chat box. Let me see. Um, can we get the recording of the class? Sure, you'll be getting the recording. This recording would be public. Everyone will be able to view, have a look at it. If we don't join course, yes, sure. If recording of the first class, well, I'll have to ask this from the admins that will we be sharing the recording of our first and second class publicly or not? I think that we won't be sharing the recording, but I would confirm it and I would ask the admin to clear it to you. But I would request you to join the live class, because in this way you can have the maximum advantage of that class. So, more any one wants to ask any question, you're welcome to ask. I hope this webinar was helpful to you. Anyone who wants to give any remarks regarding this webinar or any feedback, you're most welcome to give any feedback, so that we can improve our like personally I can consider the feedback you give, and I can improve my teaching skills and talking skills with your help. But I think no one has any questions. So Allah Hafiz, take care.